मोगा विखे वापरी छेड़छाड़ घटना उत्ते विचार करने लई महापंचायत की गई है, जिस विच लगभग वड्डी गिनती विच लोग शामिल हुए ने। इस दौरान कहा गया है कि इस घटना नूं सियासी रंग ना दिता जाए। आगुआ ने कहा है कि कुछ लोग रासी लाह लैण दी खातर मामले नूं ज्यादा तूल दे रहे हैं, जिस कारण शहर का माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने पंजाब ते केंद्र सरकार नूं इस संबंधी जल्द ही कोई ठोस फैसला ले जाण दी अपील भी की है। बुलाया है जो मोगा कांड हुआ, बस कांड, उसमें जो बच्ची की मौत हुई है उसके लिए हमने परमात्मा के आगे प्रार्थना भी की है। और जो लोग बिना वजह से इसको राजसी मुद्दा बना के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, भावें वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, भावें वो बाजवा है, भावें कोई लोकल है, और आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको राजसी मुद्दा बना के उस परिवार की, पहले तो बच्ची की लाश को उसने 5-6 दिन इधर उधर रोला और हुण उस परिवार को परेशान कर रहे हैं। तो हम उसको चेतावनी देने के लिए कि हमारे शहर का माहौल, हमारे पंजाब का माहौल गलत ना किया जाए, राजसी कर ना किया जाए इसी को। मोगा ऑर्बिट कांड का मुद्दा लोकसभा विच गुंजा। अमृतसर लोकसभा मैंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मुद्दा चुक्या। I had made a request to you for an adjournment motion on a very important issue concerning our state, which was the deteriorating law and order problem in Punjab. You thought it better to allow this discussion now at 0 hour, and I wish to bring to your notice that this whole effort has culminated in one incident, which is 4 days ago in Moga, in a town called Moga. A bus belonging to a company called Orbit Buses had threw out a young child of 13 years of age onto the ground where she was killed. After she died, her mother was thrown out. Already raised. That issue was already No, ma'am, this is not so. This is a continuation effort. They are just trying to divert the opinion of the House. No. They are trying to. We want to bring this issue. Today, the situation is such that this company is protected by the police from morning to evening. I have got 9 incidents relating to this where they have killed people and no action has been taken. He has raised the same issue. No, this, Madam Speaker, this is a matter concerning the future of our people in Punjab, law and order in Punjab. You are allowing these people to just make a noise and just harass people. No. This has to be. That issue has been already. You are not previously absent in the House. Adjournment motion. This issue was discussed, ma'am, in the House. Madam Speaker, this issue was discussed in the House. We want to know. So it cannot be discussed simply for this convenience today. No action is being taken. Buses are overrunning people. No action is being taken. Policemen are being killed. No action is being taken. Amrinder Singh carries on this way, and the police is harassed. Forget about the public. Yes. How does this state function? Your economy is in shambles. Your law and order is in shambles. Everything in Punjab is down at absolutely ground level. We wanted, therefore, to give all these facts to you if you are willing to listen. One, we had a motorcycle bomb. But if you are not listening to us, ma'am, how are we going to carry on? No, don't raise it now. We've got problems in Punjab. We have to have some forum on which we can come and speak. You don't allow us to speak. The issue is already raised by your member only. All of us. He has already raised the issue. The same issue again and again you can't. The issue has already raised. Raised by your member only. Our only issue is Moga, which is a culmination. Moga is a culmination of what is happening. You have a 13-year-old Dalit girl who was picked up and fly. The situation
उधर राज्यसभा च मोगा बस कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। Notice given, notices are admitted by the chair without allowing those notices, and then discussion. We go to other issues. And then we are trying to score political points. You say something, then I want to say something. I know that we are politicians also, but at the same time, we are in a house. If you want to say something against a particular government, action of a government, then the members of the parliament from that state, they also got a right now. My point is, I request the chair, please give opportunity to the people who have given notice. Exhaust that. And then subsequently other issues can be taken up. उधर मोगा ऑर्बिट बस कांड के दोष से गिरफ्तार किए गए 4 मुलजमान को पुलिस ने मोगा की जिला अदालत च पेश किया है। इस दौरान अदालत ने 4 मुलजमान के पुलिस रिमांड 4 दिन का वादा कर दिता है। दस कि पुलिस ने घटना तो अगले दिन इन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत च पेश किया सी। अदालत ने इन्होंने 4 दिनों लिए पुलिस रिमांड से इन्होंने मुलजमान की गिरफ्तारी तो बाद कुछ सियासी धिरां ने दोष लाया सी कि पुलिस ने मामला ठंडा करने के लिए अणपछाते नौजवान गिरफ्तार किए हैं ते उन्हां ते परचा पा दिता है, जिस तो बाद पुलिस ने इन्हां मुलजमां दी मृतका दी मां तो शनाख्त करवाई सी। उधर मृतका अर्शदीप दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सी, जिस विच उस दी मौत सिर च 60 वजन के कारण हुई है, इसका पता चला है। जेकर उस नूं मुढ़ली मैडिकल सहायता मिल जाती तो उस दी जान बच सकती सी। उधर आम आदमी पार्टी च कड्ढे गए सियासी आगू योगेंद्र यादव ने भी इस घटना के दुख प्रगटाया। योगेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार नाल मुलाकात की थी और जनता को ऑर्बिट बसां दा बायकाट करने का सद्दा दिता। परिवार की क्या मानसिक हालत है और क्या उन्होंने सहमति दी होगी, उसके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। किस हालात में परिवार को फैसला करना पड़ा, वो हालात भगवान किसी और की ना करे, तो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई दोष नहीं देना चाहता, कोई जिम्मेवारी नहीं करना चाहता। जो बड़ा सवाल है, जो कल की घटनाओं से पैदा होता है, वो ये कि क्या परिवार चाहता था कि रात 8:30 बजे बच्चे का क्रिमेशन हो? किस विधि विधान में हमारे यहाँ लिखा है कि रात 8 बजे गुपचुप धक्केशाही से करके क्रिमेशन कर दिया जाए? ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की याद दिलाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा होता था। आज पंजाब में सरकार का राज नहीं है। पंजाब में खुल्लम खुल्ला धक्केशाही, गुंडागर्दी, माफिया राज है। पंजाब में पार्टी, सरकार और परिवार, इनमें कोई फ़र्क नहीं बचा है। लोकसभा मैंबर ते आप आगू भगवंत मान ने दावा किया है कि बादल परिवार के ट्रांसपोर्ट कारण ही सरकार ट्रांसपोर्ट घाटे का शिकार हो रही है। उन्होंने दस्या कि बादल परिवार दी बसां एक दिन ना चलन कारण सरकारी ट्रांसपोर्ट को 10 लाख रुपए का मुनाफा होया है। उन्होंने कहा कि पंजाब रोडवेज सिर्फ ते सिर्फ बादलों की ट्रांसपोर्ट करन ही घाटे च है। देखिए, ऑर्बिट बसें जो कि एक परमिट पर 5-5, 6-6 बसें चल रही थी नजायज, और सरकारी बसों से ज़बरदस्ती उतार कर लोगों को ऑर्बिट में बिठाने की भी खबरें आती रहती थी। तो इसलिए सरकारी बसों को बहुत घाटा हो रहा था। लेकिन एक दिन ऑर्बिट बस ऑफ रोड हुई है, सड़कों से बंद हुई है, तो सरकारी बसों में भी सवारियां देखी गई और सरकारी बसों के जो कर्मचारी हैं वो भी खुश देखे गए, और कोई जोर ज़बरदस्ती पंजाब के बस अड्डों में नहीं हुई। और पीआरटीसी को बसों को 10 लाख से ज़्यादा का कल आमदनी हुई है, प्रॉफिट में जो वृद्धि हुई है। तो इससे पता चलता है कि किस बेशुमार लूट का शिकार हो रही है जो पंजाब की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है। और जो बादल परिवार ने सब केबल टीवी पर भी इनका कब्जा है, सैंड माफिया भी, लैंड माफिया भी और ट्रांसपोर्ट माफिया भी। इससे पता चलता है कि लोगों को टैक्सों को कैसे शरेआम लूटा जा रहा है।
ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, जिस कारण उस किरदार ते सवाल खड़े हो गए हैं। दूजे पासे कुमार विश्वास का कहना है कि इस वलंटियर के जरिए उसनू जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे, किसी ने आरोप लगाया है क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं नहीं, आप लड़कियां हैं कि नहीं, आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर नहीं, अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ FIR दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं। 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी, ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। जाने का सवाल तो तब पैदा होता है ना जबकि हमारे पास नोटिस हो। ना तो नोटिस आया है, ना किसी तरह कंप्लेंट मेरे पास आया है DCW की तरफ से, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं कब कहां और क्यों जाना है। उससे बड़ी बात एक उभर के आती है कि भाई मामला क्या बनता है। इस तरफ कुमार विश्वास मना कर रहे हैं, उस तरफ महिला मना कर रही है, तो ऐसे ही क्षुद्रतम कारणों से किसी को अपनी पत्नी छोड़ना पड़े तो मामला बनता है उसके पति के प्रति कि DCW उसके पति को चिट्ठी भेजे, नोटिस भेजे, समन करे कि क्या तुम इन कारणों से किसी महिला को प्रताड़ित करोगे, अपने पति को प्रताड़ित करोगे। मध्य प्रदेश के पन्ना च एक बस के पुल तो नाले में डिगन तो बाद आग लग गई है। आग लगन कारण बस च बैठिया करीब 50 सवारियां की सड़क मौत हो गई है, जबकि 13 सवारियां बुरी तरह जख्मी हुई हैं। एक घटना पन्ना के जिला मुख्य दफ्तर तो करीब 14 किलोमीटर की दूरी से वापरी है। हादसाग्रस्त बस सतना जिले तो छतरपुर जा रही सी। दसा जा रहा है कि पुल तो करीब 15 फुट हेठा नाले च डिगन कारण बस के ईंधन टैंक च धमाका होया, जिस कारण बस च बुरी तरह नाल आग लग गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना से दुख प्रगट करदे मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उधर अमृतसर के रेलवे हस्पताल च तैनात सीनियर फार्मासिस्ट राजेश कुमार ने जहरीला पदार्थ निकल के खुदकुशी कर ली है। उसने अपने सुसाइड नोट च किसी नू भी जिम्मेवार नहीं ठहराया है, पर राजेश कुमार की मां ने दोष लगाया है कि वो अपनी पत्नी जो रेलवे के हस्पताल च डिप्टी मैडिकल अफसर है उस तो काफ़ी परेशान सी क्योंकि वो उसनू बच्चों नाल मिलन नहीं देती सी। जानकारी मुताबिक वो करीब 7-8 महीने पहला अपना तबादला करवा के गाजियाबाद चली गई सी, जिथे वो अपने बच्चों नू भी अपने नाल ले गई सी। अपने बच्चों नाल ना मिलन कारण राजेश काफ़ी परेशान रहंदा सी। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध च कार्रवाई करते हुए लाश का पोस्टमार्टम कराने तो बाद लाश को परिवारक मैंबरों को सौंप दिता है। पहले उन्होंने दोनों की लव मैरिज हुई है, उन्होंने 17-18 साल होया लव मैरिज हुई। घर च उन्होंने मालक जाने की होया, की हुंदा रहा, की हुंदा रहा, की नहीं हुंदा रहा। आया आंदा रहा मेरे को 8-10 दिन बाद। माता मैं बड़ा औखा ही, माता मैं बड़ा औखा, मैं बच्चे मेरा नहीं लेंदी जाना तो मैंने कुट्टन भी फिर दी है। मैं किसी ने कुछ कर मैं नहीं, मैं पूछना यहो जिहा काम ना करी, हाथ जोड़ के गया उन्होंने कहता मैं लोगों के बच्चे वेखना, मैनू अपने बच्चे चेते आते हैं। मेरा आंदरा सड़दियाँ पई, अखीर से उन्होंने कोई हल नहीं लभा। उन्हें अखीर से कोई जो भी है यार है की है
ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਫ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ DMO ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਨੇ। ਸੁਸਾਈਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਊਂਗਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। स्टेट हाईवे नंबर 11 ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧੂਰੀਆ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। कि हर सड़क को बेच दिया गया प्राइवेट कंपनियों को। वर्ल्ड बैंक के लोन से बनी हुई सड़क पर टोल प्लाजे लग रहे हैं। ये पार्लियामेंट में मैं मुद्दा उठाऊंगा और हम सड़कों पर आम लोगों के साथ संघर्ष करेंगे। सबसे ज़्यादा बैट पंजाब में है, सबसे ज़्यादा बिजली महंगी देश में सब पंजाब में है, सबसे ज़्यादा टोल टैक्स पंजाब में आ गए। तो अब क्या बचा है? सिर्फ सांस लेने पर टैक्स जो है वो रहता है, शायद वो भी लगा देंगे बादल साहब। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ SSG ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਕੋਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। प्रशासन मुर्दाबाद 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 कालज प्रशासन डॉक्टर बलविंदर सिंह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਡੀਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਡੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਡੀਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਟੀਚਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। NBA 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਮ ਪੁੱਲਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਗਏ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। I hope they continue to do the same thing with the donation I'm giving and
I just want to say, Ricardo Sardinha, thank you so much. With the NBA, and just teach basketball to the youth and grow the game over here. But before I came over here, I said one of my stops must be Amritsar, and I must come here. This is where my parents grew up. This is where my origin is. This is where my roots are, and I'm happy I got a chance to come out here. And I'm really enjoying the experience so far. I've met so much of my cousins and my family, and I'm just happy to be here. It's really exciting. ज़कीउर रहमान लखवी दे बेकसूर होने का दावा करते हुए प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा दे मुखी हाफिज सईद ने कहा कि भारत 2008 के मुंबई अतवादी हमले के मामले च लखवी नूं सज़ा दिवाउण लई संयुक्त राष्ट्र ਅਤੇ अमरीका जरिए पाकिस्तान ते दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद सईद ने कहा है कि भारत को लखवी खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं ਅਤੇ उसने लखवी ਨੂੰ सज़ा दिवाउਣ ਲਈ पाकिस्तान सरकार ਤੇ दबाव बनाਉਣ ਲਈ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ संयुक्त राष्ट्र ਅਤੇ अमरीका ਨਾਲ संपर्क ਕੀਤਾ है। सईद मुताबिक भारत ਅਤੇ संयुक्त राष्ट्र ਨੂੰ पाकिस्तान ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ दखल देने का कोई हक नहीं है। देखिए, हाफिज सईद कहते हैं क्या नहीं कहते, उसका प्रभाव न सरकार की नीति पर पड़ता है न हमारे पक्ष पर पड़ता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के नीति बड़ी स्पष्ट है, कंसिस्टेंट है और हम सक्षम भी हैं हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। पहली बात तो ये कि हाफिज सईद जो है वो हिंदुस्तान के लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता है। उसका जो एक आउटफिट है या उसकी जो अपनी एक छवि है वो पूरी दुनिया के लिए क्या है वो सब जानते हैं। वो क्या कहता है उस पर बयान उसके बयान से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। भारत मानता है कि लखवी जो है वो मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान को इस पर गौर करना चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है कि उस केस को जो है कमज़ोर कर रहा है और लखवी को राहत दिलवा रहा है। हाफिज सईद ने बोला है कि लखवी जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान में बोला है कि उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है और उसको छोड़ देना चाहिए। मैं कहूँगा कि हाफिज सईद एक खुद पाकिस्तान का माना हुआ टेररिस्ट था। बॉम्बे ब्लास्ट की प्लानिंग में भी ये शामिल था और अभी भी भारत के खिलाफ आग उगलता रहता है। ये सिर्फ कुछ नहीं, झूठ का पुलिंदा है। आप मानेंगे कि पेशावर में जब बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था तब भी इसने कहा था कि हिंदुस्तान का इस अटैक में हाथ है। तो बताइए, ये झूठ का पुलंदा है। पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज शरीफ, पूरी पाकिस्तान की जनता जानती है कि हाफिज शरीफ सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं करता। अगर नकवी इनोसेंट है तो दुनिया में फिर दोषी कौन है? अब चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है कि हाफिज सईद लखवी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जाहिर है दोनों एक ही जो विचारधारा है उसके प्रतीक है, इसलिए उनकी बात पर कोई वजन देना बेकार है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, उसमें कौन, तो वो करेगा नहीं तो और कौन करेगा? निश्चित तौर से हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो है वो ज़कीउर रहमान लखवी को जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देगा तो कौन देगा? वैसे भी हिंदुस्तान के खिलाफ आग लगातार उगल रहा है। हिंदुस्तान का दुश्मन एक तरीके से हाफिज सईद है, पाकिस्तान को उकसाता रहता है, आतंकवादियों को संरक्षण में पल रहा है और उसका फार्मूला है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो फिर लखवी चूंकि हिंदुस्तान का दुश्मन है, उसने हिंदुस्तान में घटनाएं कराई हैं, तो हाफिज सईद उसका पक्ष लेगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान सरकार को सोचना चाहिए कि सारे आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के संरक्षण में पाकिस्तान में हैं, हमको मालूम भी है, लेकिन हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जो कहते थे उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे देश के नौजवान रोज क्यों शहीद हो रहे हैं? इन सब बिंदुओं पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। नहीं, उसकी क्या अहमियत है? हाफिज सईद या इस किस्म का कोई और आतंकवादी या कोई और उनका सहयोगी अगर ये कहे कि वो मासूम है और उसने कोई गुनाह नहीं किया, और विशेष तौर पर आप देखें तो कोई भी आरोपी जिस पर गंभीर स्वरूप के आरोप भी लगते हैं या सादे आरोप भी लगते हैं, वो अपने आप को गुनहगार कभी नहीं कहता। वो हमेशा ये कहता है कि भाई मैं बेकसूर हूँ। ये तो फिर बाद में जो सबूत होते हैं उनके आधार पर ये मामला सारा कानूनी प्रक्रिया के साथ में साबित किया जाता है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हाफिज सईद ने लखवी के हक में ये कहा कि वो बेगुनाह है।
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वालों 100 यूनिटां तक दी बिजली दी खपत दियां दरां विच कमी की गई है। दरां विच यह कमी 4 पैसे प्रति यूनिट की गई है। 100 यूनिटां तो ज़्यादा खपत उत्ते पहलां वालियां दरां ही रहणगियां। घटियां होईयां ये दरां 1 अप्रैल तो लागू होणगियां, जिन्हां खपतकारां ने वधेरे अदायगी कर दित्ती है। वाधू दी अदायगी उन्हां दे अगले बिल विच घटा दित्ती जावेगी। पंजाबी खबरों में फिलहाल इन्ना ही। सानू दी इजाजत, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।